Om Shanti. Practice being in the stage of soul consciousness. Become introverted. Merge in the ocean of experiences. Stay in the stage of soul consciousness and let go of extroversion, and you will be saved from laboring and become merged in an ocean of experiences. There aren't just one or two experiences, but plenty of them. Do not just have one or two experiences and bathe in just a pool of experiences. As children of the ocean, merge in the ocean of experiences. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Avikti Parivar. Today's day 21. Practice being in the stage of soul consciousness. Become introverted. Today's topic, merge in the ocean of experiences. Now we will listen to Mohini Didi. Om Shanti, everyone. Everyone is okay? Yeah? How do we know we are okay? What has to be okay? Mind has to be okay, body has to be okay, intellect has to be okay. Everything is okay, right? Yes? Not hearing from everyone is better. Since I read this Avyak signal, kind of still trying to go into depth of that. And so when I look at Adibhai, he's sitting in front, and every Murli, every class, every yoga, he's in time and sits as a yogi. So you must be having a lot of experiences, right? So later on you share, what do you experience that makes you sit half an hour very still, not moving, right? It's very, very inspiring to see a young person, total control over mind, senses, sense organs, not moving also, right? So you must be merged in the ocean of experiences. Stay in the stage of soul consciousness and let go of extroversion, and you will be saved from laboring and become merged in an ocean of experiences. Because when we are merged, then maybe that's where we are completely, very much lot of concentration, mind, body very still. So Baba says there are not just one or two experiences, but plenty of them, lot of them. Do not just have one or two experiences and bathe in just a small pond of experiences. That's very, pond of experiences. As children of the ocean, merge in the ocean of experience. I think it's lot of effort, to remain merged in ocean of experiences. So I want Adibhai to come help me to share. Maybe sudden, but come.
always sitting in front properly as a yogi soul, right? Even some big ones are moving around here, there. Yes. So as Didi shared about being merged in the experience, थोड़ा नजदीक रखो ना. Huh. So as Didi said, being merged in the experience, I feel like when you force yourself to sit, you have to sit, you have to sit, you have to sit in front of Baba, you have to do the seva. This passion won't come in you. You have to have this heart in yourself, which I feel because I can feel the love of the family, I can feel the love of Baba, and I feel we need to build this heart, we need to build this passion for what we do, even if it's just sitting outside or gardening or whatever hobby it is. It's not just sitting in front of Baba. You can do anything, but we need to have the passion. And only that passion comes when we are merged in the experience of Baba, whatever experience you have. Just sitting in front of Baba, just in the family even. You don't have to ask Baba everything, but take one experience and take that in your heart and soak it and feel that inner joy. That's what I feel. One of the experience, no? Yeah, so one experience I would like to share. This is from today only, right? So I was in the youth class and we were doing this musical chairs, right? Everyone knows that game? So one experience I had in that moment was joy with the family, right? There's a lot of youth and whatever who don't want to come to the sessions or don't even want to be here, but I feel that joy, that happiness that I experience, they experience, everyone experience, we become merged in that experience. And so we continue to move forward, we continue to stay in Baba's canopy, and that can inspire us to go on and sit and feel this love and remembrance and this joy from what we do. Adi, give the mic to. So are you ready to be teacher for youth? Yes. Om Shanti. Thank you, Adibhai. How old are you now? 14. And he is part of Avyakti Parivar since day one. I'm sure you all saw him, right? He was this much tiny little one. Every morning you still do questions for Murli? In summer, he attends Murli every day, but on routine, he just reads it before he leaves School for is school. early. And then in the evening, generally we have children. Om Shanti. So I just want to announce further programs. So for now, today we have a very special chit chat because it's going to be from Madhuban to Madhuban. So we invite our dear brother Anandji. He is going to do little chit chat with Didi, but it will be in Hindi. So please make sure if you can't understand Hindi, turn on your translation system. So this will continue until 15-20 minutes, and then we have little program. So Avyakti Parivar, you all are listening to me. You all can stay back with us to just be part of the special program, little tiny program. But also there is a special presentation by youth children, I heard. So it's a little secret surprise. So that's the program for tonight. So let's enjoy. So आनंद भाई, आप दीदी के साथ बहुत सालों से, आई एम श्योर, कितने सालों से जानते हैं आप दीदी को? थोड़ा थोड़ा बताना कितना कब आए ज्ञान में कितने साल? सो दीदी पहले शेयर करो फिर पूछो. या सब जानना चाहते हैं कि आनंद भाई कितने सालों से ज्ञान में हैं और कब मधुबन में सरेंडर हुए, तो थोड़ा उनके अपने बारे में भी बताइए. कहाँ से आए, क्यों सरेंडर? जी, शायद कुछ क्वेश्चन दीदी भी आपसे पूछ लेंगे. ओम शांति. ऑन है. ओम शांति. ऑन करो भैया. अच्छा. ओम शांति.
आज अव्यक्त परिवार और पीस विलेज में भी स्पेशल परिवार आया हुआ है, उनके बीच में मुझे ये चांस मिला तो मैं बहुत भाग्यवान हूँ। पहले तो मैं दादियों के साथ बहुत चिट चैट करता था, दीदी के साथ भी मैं कई बार बैठा हूँ मधुबन में, लेकिन यहाँ फर्स्ट टाइम दीदी के साथ भूमि बहन ने कहा कि कुछ क्वेश्चन पूछना, तो क्वेश्चन तो नहीं पूछूंगा लेकिन रू रिहान कर सकते हैं हम दीदी के साथ। तो दीदी ने कहा पहले आप बताओ कुछ। तो वैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ इंडिया में, वहीं से ज्ञान लिया है। मैं 18 इयर्स का था तब मैंने ज्ञान लिया था, महाराष्ट्र में धुलिया, नासिक के पास धुलिया डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, नासिक के पास। तो ज्ञान में आने से पहले मैं कोई भक्ति आदि कुछ नहीं करता था, तो इसीलिए मैं इस प्रकार से ज्ञान में आया था कि मैं मेरी बुआ को वॉच करने गया था। वो बाबा की बच्ची बनी थी, क्योंकि मैं उनके पास रहता था, उनको बेटा नहीं था तो उन्होंने मुझे बेटा बनाया हुआ था। तो जब मैं उनको वॉच करने गया सेंटर में उनके पीछे पीछे, तो वो क्लासरूम में चली गई और बाहर जैसे रिसेप्शन में बैठे रहते सभी कोई ना कोई, तो वो एक भाई था, उसने मुझे रोक लिया, बोलते आप फर्स्ट टाइम आए हो? मैंने कहा जी। तो बोलते रुको यहाँ बैठो। मैंने कहा नहीं, मेरी बुआ अंदर गई है, मुझे वहाँ जाना है। वो कहाँ है? बोलते नहीं, जो रेगुलर आते ना उनके लिए वहाँ है, जो फर्स्ट टाइम आते उनके लिए कोर्स रूम बाजू में था, यहाँ होता है। तो मुझे तो कुछ ABCD पता नहीं थी वहाँ की क्या है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे मेरी बुआ जहाँ गई ना वहीं जाना है। तो तब तक बहन आई बाहर, तो उन्होंने कहा क्या हुआ? बोलते ये भाई आए ऐसे कहते हैं। बोलते ठीक है जाने दो उनको। तो मैं जब बाबा के रूम में गया तो जो पांडव भवन में बाबा का फोटो, बाबा पालथी मार्ग में, वैसे ही वहां पे फोटो था। तो मुझे पहले संकल्प था जब मैं मेरी बुआ के पीछे जा रहा था, उनके साथ और एक दो माताएं थी, कि ये माताओं को ना ये बाबा लोग जल्दी बेवकूफ बना देते हैं। मैंने कहा तो जब मैं वहाँ हॉल में गया, अंदर बाबा का पिक्चर्स देखा, ब्रह्मा बाबा का, तो मुझे पहला ही संकल्प आया। मैंने कहा नहीं, इनका बाबा तो बहुत अच्छा बैठा हुआ है। क्योंकि मुझे इम्प्रेशन वो बाबाओं का था ना, दाढ़ी बढ़ाई हुई है, लंगोटी पहनी हुई है ऐसा। तो फिर तुरंत वहां पे गीत शुरू हो गया, मुरली का, मुरली थी। तो मुरली जैसे ही शुरू हुई तो उस जमाने में बहुत सारी मुरली इकट्ठी होती थी, दीदी आपको तो पता। तो वो बहन ने शुरू किया, तो बाबा ने उस मुरली में वो महावाक्य था कि कई बच्चे कहते हैं कि बाबा रोज वही बात कहते हैं कि तुम आत्मा हो, परम धाम से आए हो, साइकिल 5,000 का है। लेकिन बाबा को इसलिए कहना पड़ता है कि क्लास में नए नए बच्चे होते हैं। तो जब मुरली, इसलिए बाबा पॉइंट्स रिपीट कर। हाँ जी। तो उस समय तो मुझे इतना समझ में नहीं, लेकिन मैंने कहा ये ऐसे कौन बोल सकता है कि नए नए होते। फिर मैंने जैसे ही मुरली पूरी हुई, वो दीदी से पूछा ये आपने जो पढ़ा, मैंने कहा अभी मैगजीन, मुझे पता नहीं था ये मुरली है क्या, ये कहाँ से लाए हो? मैंने कहा। तो उन्होंने कहा ये माउंट आबू से आता है, हमारे परमात्मा शिव परमात्मा के महावाक्य हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मेरी बुआ ने मुझे देखा तो वो सबसे ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि उसको मेरे से ये था कि भाई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो यही करेगा, क्यों जाते हो वहाँ पे ऐसा। तो फिर मैंने दूसरे दिन भी मैं वहाँ गया, फिर मैंने उनको पूछा, वहाँ मधुबन का पिक्चर लगा था बहुत पुराना। मैंने कहा ये कहाँ का पिक्चर है? बोलते ये हमारा हेडक्वार्टर है माउंट आबू में। मैंने कहा ठीक है मैं जाऊँगा वहाँ। तो उन्होंने कहा दीदी कि नहीं ऐसे नहीं जा सकते, आपको पहले यहाँ सेंटर पे आना पड़ेगा और पवित्रता की धारणा होती है। तो मुझे लगा उस समय 18 साल का था, पवित्रता की धारणा माना यही था कि भाई स्नान करना है और शुद्ध भोजन करना है। तो मैंने कहा नहीं, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ और रोज स्नान करता हूँ। तो उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, ब्रह्मचर्य रहना पड़ता है। मैंने कहा मैंने तो शादी नहीं की हुई। तो फिर वो दीदी को लगा ये भाई को अभी बताओ तो क्या बताओ। उन्होंने कहा ठीक है हम जाएंगे ना, आपको लेके जाएंगे। मैंने कहा क्यों, मैं अपने आप नहीं जा सकता हूँ क्या? मुझे ये नियम कुछ भी पता नहीं था ना।
तो उन्होंने कहा ठीक है आप यहाँ आओ रोज क्लास में, फिर आपको बताएंगे कब जाना है। तो मैं डायरेक्ट मेरा मुरली में ही दूसरे दिन रोज मैं मुरली सुनने जाता था। तो मुरली में ही जन्म हो गया और 6 महीने के अंदर में मधुबन चला गया, माउंट आबू। और जब मैं बाबा से मिलने गया तो उस समय तो ऐसा वीडियो आदि कुछ नहीं होता था कि पहले से अव्यक्त बाबा को देख लिया भाई, फिर वहां जाने के बाद तो मुझे लगा कौन कि से साल में? मैं 91 में दीदी अच्छा। फर्स्ट टाइम बाबा से मिलने गया था मधुबन में। तो तो बैठा उस समय दादी प्रकाशमणि? जी दादी तो थी, दादी सामने ही नीचे ही बैठी थी, तो हम भी बैठे। तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा बाबा आज मैं आया हूँ, बाबा क्या बोलता है। तो मुझे अभी तक वो लाइनें याद रहती बाबा की कि बाबा ने पहली लाइन बोली थी मुरली में 91 में, नवंबर की मुरली है कि आज बाप दादा संगम युग के राज दुलारे सो सतयुग के राज्याधिकारी बच्चों से मिलने आए। ये मुझे वो लाइन हमेशा याद रहती, पहली भगवान से सुनी हुई लाइन। फिर मैंने जो दीदी मुझे लेके गए थे उनको कहा मुझे अभी वापस नहीं जाना है, मुझे यही रहना है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है, हमारे नियम है, पहले आपके घर वालों के लिए छुट्टी लेनी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं, घर वाले मैं कहूँगा वही कहेंगे, वो ना नहीं करेंगे मुझे। तो भी मुझे समझ नहीं था ना इतना, तो वहाँ देखा मैंने दादियों को सबको, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ, क्योंकि उस समय और कुछ नहीं था दूसरा। तो फिर उन्होंने मुझे समझा के वापस लेके गए। फिर वो मुझे बोलते थे कि आप सेंटर पे आओ। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा तो वहां जाऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा आपके पास। तो फिर वहाँ मेरे बुआ जी बिल्डर थे, तो बहुत सारा उनके साथ भी मैं उस समय भी उनको मदद करता था। तो सेंटर पे भी कुछ भी मदद होती थी तो बताते थे कि ये करना है वो करना है, तो मैं वहाँ जो भी सामान भेजना होता था, लेबर भेजने होते थे, भेजता था। तो ऐसे में 8 दिन में 10 दिन में एक बार जाता था। लेकिन मेरी बुआ को रोज पूछता था कि आज बाबा ने क्या कहा। तो ऐसे हुआ, फिर दादी का लेटर आया कि भाई कार सेवा के लिए भाई चाहिए। तो वो मैं 1 मिनट और सुना दो दीदी, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। सुनाओ ना अच्छी तरह से। तो हमारे वहाँ बुआ के पास कारपेंटर काम कर रहे थे, वो भी बीके थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आनंद भाई, आप ना मुझे थोड़ा सा फेविकॉल ला के देंगे आप गाड़ी पे जाके, तो अच्छा रहेगा, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो मैं मैच देख रहा था, तो मैंने उनको कहा मैं मैच देख रहा हूँ, आपका काम है आप लेके आओ, मैं किस लिए लाऊँ आपके लिए फेविकॉल। तो उन्होंने कहा मैंने सुना है आप माउंट आबू जाने वाले सेवा में। मैंने कहा हाँ। बोलते फिर आप यहाँ मुझे फेविकॉल नहीं ला के देते, वहाँ क्या सेवा करेंगे। बोले आप जाके। तो मैंने कहा नहीं, मैं वहाँ बाबा के घर में कर लूँगा सेवा, यहाँ मेरा काम नहीं होने का आपका फेविकॉल। बोलते तो उन्होंने एक बात कही कि इससे ब्राह्मणों के शब्द सच हो जाते हैं। बोलते मैं बाबा को कहूँगा कि आप जाएंगे ना, आपको वहाँ ईंटें उठाने की सेवा देनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं उठा लूंगा, ईंटें भी उठा लूंगा। उनको पता था पानी भी नहीं लेता है तो ईंटें कहाँ से उठाएगा। तो जैसे ही दीदी मैं मधुबन में आया 93 में, तो ज्ञान सरोवर का काम शुरू था। तो सवेरे दादी ने मुरली सुनाई और हम सब बस में बैठ के ज्ञान सरोवर आए। तो जो सेवा बांटने वाला था उसने कहा आप वहाँ फलानी जगह जाओ राजऋषि भवन में, वहाँ आपको बताएंगे क्या सेवा है। मैं वहाँ गया तो भाई ने कहा अच्छा सेवा में आए हो, वो टोकरी उठा और उसमें 6 ईंटें भरो बोले। तो मुझे लगा अरे ये भाई ने यहाँ फोन तो नहीं कर दिया। मैंने कहा लेकिन उस समय तो मोबाइल नहीं थे। तो मैंने कहा कोई हर्जा नहीं, वो वहाँ बहुत सारे सेवादारी थे, तो मैंने भी वो सारा दिन उनके साथ उठा के फिर शाम को हम पांडव भवन आए। तो मुझे कभी कुछ किया नहीं था, तो उस सारा दिन धूप में और वो ईंटें उठाने का। तो जैसे ही शाम को स्नान करने गया मुझे बुखार आ गया। तो इतना बुखार आ गया, ठंडी भी लगने लगी। फिर डिस्पेंसरी गए, तो मैंने डिस्पेंसरी जाने के सामने ही वो रिजर्वेशन का था, वो ओम प्रकाश भाई का। मैंने कहा मेरा कल का रिजर्वेशन करा दो, मुझे जाना है वापस। तो फिर दूसरे दिन वापस क्लास में गए। मैंने कहा क्लास करने के बाद जाएंगे वापस।
तो दादी जब मुरली सुनाती थी ना, तो ऐसा लगता था बाबा ही मुरली सुनाता है। दादी प्रकाश मणि जब मुरली सुना, फिर दादी अपने अनुभव भी शेयर करती थी कि कैसे बाबा सेवा करता था, हम बाबा के साथ कैसे सेवा की। फिर मेरा माइंड चेंज हो गया वो सुन के। मैंने कहा देखो ये दादियों ने इतनी सेवा की आनंद, और तू एक ही दिन में बुखार में दर्द गया। फिर मैं वापस गया ओम प्रकाश जी के पास। मैंने कहा भाई जी मुझे नहीं जाना है, मेरा टिकट चेंज। बोलते ऐसे बार बार नहीं करना होता है, एक ही बार फाइनल बताओ। मैंने कहा नहीं अभी नहीं बताऊंगा। फिर उसी 2-3 दिन के बाद फिर वो भवन वाला भाई मुझे आया, फलाने रूम में कौन रहता है? मैंने कहा मैं रहता हूँ। बोलते वो वॉशरूम में सब कपड़े पड़े किसके? मैंने कहा मेरे। बोलते कौन धुलाई करेगा वो? मैंने कहा ठीक है धुलाई कर लूंगा। तो ऐसा, तो फिर मुझे ज्ञान में आने के बाद कुछ भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आया या ये संशय बुद्धि हो के ये क्वेश्चन, कुछ नहीं। लेकिन एक बात, बाबा के रूम में मैं जाता था तो बाबा को रोज उलना देता था। तो वो बात थी कि बाबा क्या मैं, सब ज्ञान मुझे पसंद है लेकिन ये कलब कलब मैं बाबा मम्मा को मिस कर दूंगा साकार में, ये मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो देखो बाबा हमारी हर बात सुनता है। तो मैं ना, मेरे कोई मम्मी पापा ज्ञान में थे या मेरा कोई पहचान था मधुबन में, तो मुझे बाबा ने ऐसी सेवा दी। वहां तो मैं गया था कार सेवा के लिए, लेकिन दादी ने कहा नहीं, ये कहाँ से, क्लास में बैठे रहते थे ना सामने, तो बोलते आतम भाई को ये इसको भोली दादी के पास सेवा दो, ये भाई को वहां नहीं भेजना, भोली के पास सेवा करना। तो ड्रामानुसार भोली दादी के पास सेवा करना मना। रोज शाम को भोली दादी को हिंदी नहीं लिखने आता था, तो मैं लिखता था कि क्या मेनू, कल भोजन क्या बनेगा। तो फिर वो भोजन की पर्ची बड़ी दादी को दिखाने जाना होता था रात को, यीशु दादी के ऑफिस में। दादी, यीशु दादी लेटर पढ़ती थी और दादी सुनती थी। तब मेरा तो इसीलिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहती थी कि बड़ी दादी को मैं मिलूं क्या, क्योंकि भाई ये रोज का काम है इनका। तो दादी, अगर यीशु दादी लेटर पढ़ती थी तो बोलती थी हाँ यहाँ बैठ जाओ, मैं बाद में देखूंगी। तो उस बहाने मुझे रोज दादी के पास, बड़ी दादी के पास जाने को मिलता। फिर दादी ने एक दिन पूछा, 2-3 महीने हो गए, अच्छा आप खुश हो भोली दादी, भोली के पास सेवा करके? तो मैंने कुछ भी बोला नहीं। मैं हमें बचपन में सिखाया था कि कोई भी बड़ा कुछ पूछे तो डायरेक्ट जवाब नहीं देना होता है। तो मैंने कुछ भी नहीं। फिर दादी ने कहा अच्छा खुश नहीं हूँ भोली से के साथ सेवा करने? दोबारा दादी ने पूछा। तो मैंने कहा दादी ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे घर में भाई भोजन नहीं बनाते। मैंने कहा मैंने पहली बार तो दादी हंसने लगी। दादी ने कहा अच्छा आपको शर्म आता है भंडारे में सेवा करने? मैंने कहा हाँ जी। तो दादी ने कहा अच्छा इधर बैठो, देखो ये बाबा के तरफ उंगली दिखाते हुए ब्रह्मा बाबा के फोटो के तरह, बोलते देखो ये ब्रह्मा बाबा नंबर 1 सोल है, आपको पता है ना? बोलते। मैंने कहा जी दादी। बोलते बाबा जब साकार में थे तो रोज बाबा पहले भंडारे में आता था, बाबा पहले सब्जी काटने बैठता था। तो वो अगर कर सकता है तो हम नहीं कर सकते क्या? दादी कभी आप नहीं कर सकते क्या ऐसा नहीं बोलती थी। वो भी मैंने दादी से, हम नहीं मना, खुद को भी दादी उसमें ऐड करती थी। तो मैंने कहा ठीक है दादी, मैंने कुछ नहीं बोला। तो वो जो मेरे मन में संकोच था तो वो बाबा को पता, तो दादी ने वो निकाल दिया। तो इस प्रकार से फिर दादियों के साथ बहुत नजदीक रहने का चांस मिला ड्रामानुसार। तो दादी प्रकाश मणि भी, दादी गुलजार भी, दादी जानकी जी भी, और सभी बड़ी दीदियों के साथ भी बहुत। तो मैंने कोई पुरुषार्थ नहीं किया कि मुझे इनके नजदीक जाना है या ऐसा। तो वो बाबा ने ऑटोमेटिकली, फिर मेरे मन में जो था ना, रोज आता था कि साकार मम्मा बाबा से मैं मिला नहीं हूं, तो बाबा ने जैसे उनके साथ रख के मुझे वो पालना दे दी। मेरे मन में जो संकल्प था वो क्लियर कर दिया। तो इस प्रकार से सहेज भाव से 93 से मैं वहाँ सेवा देता हूँ। फिर जब ज्ञान सरोवर शुरू हुआ तो सबको बुलाया दादी ने हॉल में, कि हर सबको पता था कि आज दादी ना ज्ञान सरोवर में जिनको भेजना है ना उनको उनके नाम अनाउंस करने वाले। तो मैंने कहा लास्ट में बैठने का अपन दिखेंगे नहीं। क्योंकि मधुबन से बाहर ज्ञान सरोवर जाने का हमारा दिल नहीं था, कि हमें तो मधुबन में ही रहना है।
तो सबसे पहले पहले दादी ने, अच्छा वो जो भोली के पास सेवा करते कहाँ बैठे, तो खड़े हुए बोलते ठीक है बैग पैक करना और कल ज्ञान सरोवर जाना, सेवा में वहां जाना है। तो ऐसे कई भाई थे हम, पहले पहले 20-25 भाई। तो फिर कैसे तो भी मन मार के उस समय, क्योंकि दादी को मैं हमेशा, अभी जैसा योग में बैठे थे तो दीदी को देखा तो मेरा संकल्प चला, मैं जब से मधुबन में रहा तो दादी को जब मैं देखता था ना तो मुझे यही भासना होती थी बड़ी दादी को कि ये साकार मास्टर ब्रह्मा है, क्योंकि बाबा के सीट पे है। तो अभी हमारे सामने भी मास्टर ब्रह्मा बैठा हुआ है तो उस इसलिए मैं कुछ भी चीज, क्योंकि भोली दादी ने मुझे सिखाया था। दीदी बीच में एक बात, और एक दिन रोजी बहन के भाई आए हुए थे, रोजी बहन का भाई, तो उनको दादी ने पूछा होगा कि आपको कुछ खाना है, कुछ डील है आपका खाने का। तो वो रात को जाते समय बोल के गए होंगे कि हाँ मुझे जाने से पहले सवेरे ना रसगुल्ले खाने हैं। तो रसगुल्ला वो खाने में शौकीन थे बहुत, रोजी बहन के भाई वो। तो दादी, भोली दादी ने मुझे एक पहरे वाले को भेजा रात को 10:30 बजे मुझे रूम में उठाने के लिए, बोलते उसको उठा के लाओ मुझे तो कुछ नहीं आता था, लेकिन मैं हेल्पर, उनको ये ला के दो वो ला के दो ऐसा। तो फिर मैं आया, क्योंकि उस समय 20 साल का था तो नींद बहुत आती थी। तो मैंने कहा क्या हुआ दादी को, ठीक है। तो फिर मैंने कहा पूछा दादी क्या है बात है, बोलते ऐसा करो फ्रिज में से ना दूध निकाल के लाओ। मैंने कहा क्या आपको चाय पीना है, बोलते नहीं वो रोजी के भाई को ना रसगुल्ले बनाने थोड़े से मुझे। मैंने कहा दादी ये कोई टाइम है क्या, वो घड़ी दिखा रहा था मैं उनको, 11 बज रहे। मैंने कहा मैं आते आते 11 बज गए थे। तो उन्होंने बोला इधर आओ, हम जब बाबा के सेवा में आते हैं ना, समर्पित होते हैं ना, तो केवल हाजी बोलना होता है बोले, और दूसरा कोई शब्द नहीं होता है बोले। तो मैंने कहा ठीक है दादी। तो फिर वो बनाए तो वो उन्होंने पक्का करा दिया था, बोलते बड़ी दादी भी कुछ भी कहे कोई भी तो हाजी बोलने का। तो मैंने कहा ठीक है हाजी बोलेंगे। तो फिर अभी दादी ने कहा ज्ञान सरोवर जाना है तो हमें हाजी करना था तो इस ऐसे, लेकिन वो हाजी करने में इतनी ब्लेसिंग मिली है, इतनी ब्लेसिंग मिली है, मैंने अनुभव किया है कि जहाँ हम अपना मन मत चला देते हैं तो उतना थोड़े समय के लिए तो लगता है हमें कि भाई हमें बहुत ये हो गया, लेकिन वो प्रोग्रेस नहीं होती है। तो ये ड्रामा अनुसार भाग्य कहो या सब, तो मैं अपने आप से पूछता हूँ लास्ट जन्म में क्या किया था आनंद, तुमको तो यहाँ रेडीमेड सब कुछ मिल गया है। क्योंकि बाहर सेवाओं में भी कईयों की इच्छा होती थी कि दादी के साथ हम जाने चाहिए या दादी ने हमको बाहर लेके जाना चाहिए कहाँ सेवा में, लेकिन हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन दादी जानकी, दादी गुलजार के साथ उन्होंने ही खुद ने प्रोग्राम बनाया कि नहीं हमारे साथ चलना, तो ऐसा ड्रामा बना। तो दीदी आज तो विशेष मुझे एक संकल्प है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा लास्ट में कि एक बाबा से ही प्यार लेना है, प्यार करना है, और बाबा का ही प्यार सबको देना है। तो प्यार लेना तो हमें पता है बाबा से कैसा लेना है, लेकिन बाबा का प्यार सबको कैसे देना है, वो उसकी विधि क्या है? जब आत्मिक संबंध होता है ना, किसी ने हमारे पास एक, जब हारमोनी हाउस में जूइश एरिया है ना, तो बहुत अच्छी रॉयल माता आती थी। तो बोला कि देखो आप बहनें भगवान का प्यार हमें देते हो तभी सदा देते हो, अगर ये आपका प्यार होता ना तो मूड पर होता है इंसान के, आज स्नेह में मुस्कुरा दिए कल नहीं मुस्कुराए, मतलब ऐसे करके थोड़ा पता लगता है। तो मुझे बार बार यही कहे कि आप बाबा का प्यार देती हो मुझे, तो मुझे एकदम अंदर में आया कि, और ऐसे भी मैंने देखा है कि एक होता है मेरा आत्मिक प्यार किसी से हो, दूसरा जब जहाँ बिल्कुल अलग प्रकार के संस्कार की आत्माओं के साथ आप रहो, और रहना इसलिए कि वो लोग भी बाबा के बच्चे हैं, ये भी इंस्ट्रूमेंट है, तो मेरा तो कभी वो नहीं होता। तो मैं प्यार नहीं कर सकती पर बाबा तो इसको प्यार करता है, तो मैं क्यों नहीं प्यार कर सकती।
तो मेरा हर एक के प्रति अभी ऐसा ही हो गया है कि बाबा तो इसको स्नेह देता है, तो मैं भी तो कर सकती हूँ ना। तो बाबा ने जो मुझे स्नेह दिया, अभी आज आप देखेंगे हर एक की पालना अलग तरह की होती है। मैं ये कहती हूँ मुझे बाबा ने कैसे पाला, मुझे बाबा ने क्या दिया, इतना स्नेह दिया, बाबा ने केयर की, कदम कदम पर राय दी, बाबा ने सब तरह की ट्रेनिंग मिली। तो मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है, जो भी मेरे साथ रहे, कितनी कन्याएं आई 16 साल की, 20 साल के, तो सब में सब क्वालिफिकेशन हो, सब सीखें, तो ये प्रभु प्रेम फिर केयर में बदल जाता है। जब केयर करते हैं आप तो ये चाहते हैं कि हर एक का भविष्य अच्छा हो, तो उसको वही सिखाएंगे जो उसको भविष्य में काम आए। तो किसी भी आत्मा को, कई कहते हैं आप कैसे रह लिए इतने साल इसके साथ। मैंने कहा बाबा उसको प्यार करता है तो मैं क्यों ना करूं। फिर चाहे बहुत डिफरेंस होगा, पर कभी ना हमने किसको निकाला, ना रिजेक्ट, कभी नहीं, हर एक के साथ बहुत प्रेम से। और दूसरा फिर ये होता है कि बाबा ने, मैं जब से ज्ञान में ही मैंने देखा बाबा सम्मान बहुत देता था, रिस्पेक्ट। तो मैं सबको ये कहती हूँ कि अगर दो बातें लव एंड रिस्पेक्ट सीख लो तो आप खुद भी सफल होंगे और आपके साथ जो भी होगा उसको भी सफलता मिलेगी। तो इस तरह से हमने हर एक के प्रति, देखो आप जब थे तो इन्होंने बताया नहीं कि कोई भी स्पेशल कुछ खाना हो ना तो आनंद भाई बना के देते थे, राइट। तो कोई भी अच्छी चीज़ बनेगी ना तो भेज देते थे ज्ञान सरोवर में, कॉटेज में कि भेज दो मोहिनी बहन, औरों को भी भेजते होंगे। तो कहने का मतलब कि प्यार का भी थोड़े ही लोग समझ पाते हैं प्यार क्या है। हमने प्यार समझा ब्रह्मा बाबा से। तो अभी भी मैं कई बार अभी पूछती हूँ ना ऊपर बैठ के कि अच्छा दिन को फिर थोड़ा ये बना दो ये, तो बोलते हैं कि किचन वाले तो यहाँ हैं और आप ऊपर से किचन चलाते हो। मैंने कहा बाबा ने, मैं जयपुर, मुझे बाबा ने भेजा, कई जगह भेजता, तुम जाओ तुम जाओ, तुमसे प्रेरणा मिलेगी। और मुझे ट्रैवल पसंद नहीं था और रोज़ ट्रैवल करना। तो वहाँ पर जब मैं पहुँची तो बोला बाबा आपको बहुत प्यार करता है। मैंने कहा आपको कैसे पता? बाबा ने हमको लिखा, इसको सवेरे इतना जूस देना, इसको ये भोजन खाती है ना, इसको ये सब्जी देना। बाबा ने हमको लिखा कि आपको क्या दे, क्योंकि मैं भी थोड़ी सी चूजी थी, क्योंकि सबसे छोटी थी घर में, 2 बहनें और भाई बड़े थे, तो जो होता था, जो पसंद है वो मिलता था। तो केयर क्या होती है, ये नहीं है कि बस मुझे बहुत प्यार है और बैठे आप, नो, केयर करते रहते हैं। किसी भी प्रकार की किसी को केयर चाहिए। तो ये जो केयरिंग नेचर होती है ना, ये भगवान के प्यार, और भगवान का प्यार हमें ब्रह्मा बाबा के द्वारा मिला। मामा इतना प्यार करती थी, और हम लोगों का भी प्यार ऐसा नहीं था जैसे भाई ये तो अलौकिक माँ है, ऐसा ही होता था कि ये सर्विस साथी है। और थोड़े ही साल मामा के साथ गुजारे, पर सच्चा प्यार क्या होता है ना, वो एक बार आत्मा को अनुभव हो जाए और वो प्रभु का ही है, तो सबको फिर वही होता है ना, सबको फील भी होता है। अभी मैं शांतिवन में रहती हूँ तो कुछ नहीं, बस दीदी आए 2 मिनट दृष्टि दे दो, और मुझे लगता है कि इन लोगों ने जो हमें बाबा ने दिया, दादियों ने दिया, वो इनको तो मिला नहीं है। तो मैं, भूमि ने लक्ष्य रखती है कि किसी का भी फ़ोन आए मना नहीं करते, बेशक टाइम देना पड़ता है कि उनको भी 2 मिनट भी 5 मिनट बाबा का प्यार अनुभव हो, तो जैसे उस आत्मा के लिए आगे के लिए रास्ता थोड़ा सहज हो जाए। तो उनका भी ऐसा ही प्यार रहता है, हमारा भी रहता है। दीदी जैसे आपने कहा ना कि ब्रह्मा बाबा ने बहुत प्यार किया, तो हमने भी दादियों से वैसा ही प्यार पाया। तो मैं 1 मिनट के लिए बीच में और एक बात सुनाऊंगा। मैं दादी के साथ अफ्रीका के टूर पे था, तो दादी का टिकट फर्स्ट क्लास में बैठी थी दादी, मैं हंसाबेन हम इकोनॉमिक क्लास में बैठे हुए थे और नाइट का फ्लाइट था।
तो वो फर्स्ट क्लास में वो फ्रूट प्लेट बना के देते बड़ी। हम तो सो गए थे फ्लाइट में, पीछे खाली सीट थे। तो मैंने देखा, मैं लेटे लेटे देखा तो वो लाइट चलने की जगह पे लाइट लगी रहती ना नाइट में फ्लाइट में। तो मैंने कहा कोई तो भी चल के आ रहा है उधर से। तो मैंने फिर थोड़ी आंखें खोली तो दादी आ रही। मैंने कहा दादी को क्या हो गया, क्यों चल के आ रही दादी? तो मैं उठ के बैठ गया। तो फिर मेरे पास आके दादी बोलती है, देखो फर्स्ट क्लास में ना ये बड़ी डिश होती है फ्रूट की, तो मैं तो नहीं खा सकती थी, तो तेरे लिए लेके आए हूँ। तो ये हो, मैंने कहा देखो ये प्यार है कि नहीं तो वो किसी को भेज भी सकती थी कि भाई उनको ये दे दो, वहाँ पे फलाने सीट पे बैठे। तो दूसरा प्रश्न है दीदी मेरा कि संगम युग पे सबसे बड़ी प्राप्ति तो हमें बाबा मिला है, लेकिन बाबा का ने और एक बात कही है कि वो केवल संगम युग पे ही मिलती है। कि बाबा कहता है कि तुम ब्राह्मण बच्चे ही अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल सकते हो। तो अतीन्द्रिय झूले में झूलने के लिए हमारे अंदर ऐसी कौन सी एक स्पेशलिटी होनी चाहिए, एक तो जिससे हम बहुत सहज भाव से अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं? ये जो टॉपिक चल रहा है ना अंतर्मुखता का, तो जो जितना अंतर्मुखी होता है ना, तो वो बाहर के प्रभाव में नहीं आता है जल्दी जल्दी। जैसे बहुत हो जाता है ना कि ये हुआ तो खुश है, नहीं हुआ तो, ये सब बाहर मुखता ही है ना। तो ये जो कहते हैं ना अंतर्मुखी सदा सुखी, तो अतीन्द्रिय सुख आजकल तो बात भी नहीं चलती अतीन्द्रिय सुख की, सभी अपने तरह के मौज में है। लेकिन एक ऐसा सुख है जो हमको दुख सुख से न्यारा रखता है। नहीं कहते हैं ना, अभी आपका नाम भी आनंद है, मेरे साथ जो भाई हैं जो मुझे लाते हैं न्यूयॉर्क से, उनका नाम भी आनंद है। तो आनंद, तो मैं न्यूयॉर्क में पूछ भाई ठीक हो? ओके। मैंने कहा ओके इनफ नहीं है, आनंद में हो। तो आनंद का मतलब कि कोई भी परिस्थिति दुख सुख उससे न्यारे तो आप आनंद है। जैसे जितने गुरु हैं, स्वामी हैं, सबको आनंद का लास्ट में टाइटल होता है ना, वो इसलिए कि दुख सुख से मतलब बहुत जल्दी, मतलब हम लोगों की जो बड़ी सूक्ष्म में अटैचमेंट्स एक्सपेक्टेशंस है ना, उससे स्थिति बहुत डावाडोल होती है। तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, राइट। तो भोजन खाया, आज तो बहुत अच्छा भोजन था, तो इंद्रियों का सुख मिला हमको, राइट। तो बाबा ने भी तो देखो, ब्रह्मा बाबा ने भोजन बनवाने के लिए बनवाए, मंगाए, सिखाने के लिए, तो बाबा ने मना नहीं किया है कि अच्छा भोजन नहीं खाओ। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज अगर ये नहीं मिला तो हम कैसे खाएंगे, ये कैसे करेंगे। तो इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियों के सुखों से भी ऊपर जाते हैं, तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। तो अतीन्द्रिय सुख में क्या होता है, एक उमंग, उत्साह, मतलब इस तरह की तरंगे आती हैं। जैसे अतीन्द्रिय सुख जब होता है ना, तो अंतर्मुखता, अंतर्मुखता की गहराई में जाएंगे तो बस मुझे आत्मा को, हमारी तो एक ही जीवन में हॉबी थी, एक योग की और दूसरा हमेशा ये हॉबी रही कि जितना भी टाइम मिले साइलेंस में रहो, जितना ज़रूरी है बोलो। अभी भी मैं कई बार बहनों को कहती हूँ कि आप लोग कितना बोल लेते हो, हमसे तो बोला ही नहीं जाता है, हम तो थोड़ी देर बोल के कहते हैं अभी और क्या बोले। मैं पांडव भवन में एक बहन थी टेलीफोन एक्सचेंज में, उसको ये पता नहीं था न्यूयॉर्क कहाँ होता है, उसने सोचा लंदन में होता है। तो मैं फ़ोन करने जाती थी, कहती है तुम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन करती हो और कम से कम बिल आता है तुम्हारा। तो मैंने कहा क्यों? बोला अब लंबी बात नहीं करते हो, कहीं तो बैठ के कहानी ही करते रहते हैं ना। तो कहने का मतलब ये कि इंद्रिय भी संयम में रख के जितना हम शुरू से चलते हैं, और हमारी तो मनमोहिनी दीदी इंचार्ज थी, काफ़ी अच्छा डिसिप्लिन, शब्दों पे डिसिप्लिन, उठने बैठने पर डिसिप्लिन। तो वो अंतर्मुखता जो है ना, पर मुझे अच्छा भी लगता है अंतर्मुखी
सदा सुखी, और जो कल भी बाबा ने कहा ना, स्वीट साइलेंस, तो इन सब से ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव बढ़ता है। किस किस ने अनुभव किया अतीन्द्रिय सुख का? हाथ खड़ा करो। अति इंद्रिय सुख, न कर्म इंद्रियों से न ज्ञान इंद्रियों से। बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है दीदी, एक मैं लास्ट प्रश्न। हाँ, आप वर्तमान समय क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? मुझे हमेशा ये होता है कि अब हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ के, क्या मैं बाबा की याद में हूँ, क्या मैं बाबा की याद में हूँ, या मुझे कोई और संकल्प चल रहे हैं। तो बहुत अटेंशन रहता है कि बाबा की याद रहे। और दूसरा, कोई न रॉन्ग है न राइट है। मतलब मेरा एक अकर्मी, जो हमने दादियों की एंड में स्टेज देखी, न ये अच्छा न ये बुरा, न सब बाबा के बच्चे हैं, सब जो कुछ ड्रामा अनुसार हो रहा है। एक अकर्मी अपना स्वभाव भी ऐसा रख के, तो पुरुषार्थ याद का बहुत ही अटेंशन रहता है, क्योंकि बार बार बाबा सामने आ जाता है। ब्रह्मा बाबा तो इतनी बार, जब भी सोचो सामने ही है। और ऐसे ही मामा का भी देख, मामा से हमने पूछा ना, तो हम ट्रैवल करते हैं, कोई नीचे दुख बातें आती भी है ना, तो बस याद करो बाबा को याद। पर याद से क्या होता है, एक तो आत्मा सतो प्रधान बनती है, परंतु जैसे एक ऐसी पावर और प्रोटेक्शन है याद में, तो वो यूज़ करते हुए, मतलब कठिन तो होता ही है ना। अभी यहाँ से इंडिया जाते हैं तो इजी तो नहीं, आप ट्रैवल करके आए। तो बाबा की याद की जो शक्ति है, प्यार है और साथ का अनुभव है, बस यही लक्ष्य रहता है कि सब करो कार्य व्यवहार, वो भी अच्छा है, रौनक तो चाहिए ना। हमने तो बचपन से ही ऑलराउंड सब पार्ट बजाया है, तो अभी भी वही सब करते हैं, लेकिन करते हुए भी अंदर में अटेंशन रहती। मुझे साइलेंस, शांत रहो, बाबा को याद करो, शांत रहो बाबा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप संतुष्ट हैं उत्तर से? जी जी जी। आप संतुष्ट जी, हैं? जी। कुछ सुनाना है अतीन्द्रिय सुख पर आप? नहीं, मैं मम्मा का मात चल रहा है, तो दादी जान की जब भोजन पे आती थी ज्ञान सरोवर में, तो वो 3 बजे आती थी। उनको सबको मिल के फिर फ्री होके भोजन करना पसंद। तो हम डाइनिंग में 2 ही जन रहते थे, दादी और मैं, क्योंकि ब्रह्म उनके साथ रहने वाली बहनें भी थक जाती थी, वो भी फटाफट खा के चली जाती थी, कहती थी छोड़, आप छोड़ देना बाद में। तो दादी मुझे रोज एक बात कहती थी दीदी यज्ञ की, तो मुझे भी लगता था मुझे क्यों सुनाती ये बात। तो मम्मा की एक बात सुना के मैं पूरा करूंगा। एक दिन दादी ने कहा, कुछ प्रश्न पूछा मुझे मुरली के लिए, तो उससे उन्होंने फिर मुझे एग्जाम्पल दिया कि मुरली का जीवन में क्या महत्व होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बड़ी दीदी ने एक बार बाबा से पूछा था कि बाबा, मैं माना संशय हो के नहीं, लेकिन मेरे खुद को थोड़ा क्लियर करने के लिए कि मम्मा पहला नंबर लेती है, मैं क्यों नहीं पहला नंबर लेती हूँ? क्योंकि मम्मा ने तो कुछ भी त्याग नहीं किया है, मम्मा को कोई बंधन नहीं था, मुझे तो कितना बंधन था, मैंने कितना त्याग किया सब कुछ। तो क्या बात है जो मम्मा पहला नंबर लेती, मैं नहीं लेती हूँ? तो बोलते बाबा ने उस समय कुछ जवाब, बाबा ने कहा, बोलते हैं कि समय आने पे आपको जवाब देंगे बाबा। तो उस जमाने में दीदी को पता है कि पार्टी जब आती थी मम्मा बाबा से, तो दीदी ही मिलाती थी, मनमोहिनी दीदी पार्टी को मम्मा बाबा से मिलाते थे। तो कोई पार्टी आई हुई थी, तो मम्मा बाबा से मिल रहे थे, तो दीदी भी बैठी हुई थी। तो जब वो पार्टी चली गई, तो बाबा ने दीदी से पूछा कि बच्ची, बाबा ने क्या कहा बच्चों से? तो दीदी बहुत बाबा के साथ होमली थी, फिर तो उन्होंने सहज भाव से जवाब, उनको पता नहीं कि बाबा मुझे वो उस दिन के क्वेश्चन का आंसर देने वाला है।
तो बोलते बाबा आप तो उनसे मिल रहे थे, मैं तो लच्छू से बात कर रही थी कि क्या सौगात देनी क्या नहीं, ऐसा तो मेरा ध्यान नहीं, बोलते आपने क्या बोला। तो फिर बाबा ने मम्मा से पूछा कि बच्ची बाबा ने क्या कहा। तो फिर मम्मा ने सारा जो भी बोला वो रिपीट करके सुनाया मम्मा ने। तो फिर बाबा ने कहा ये रिपीट करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन दीदी आपने मुझे प्रश्न पूछा था ना कि मम्मा क्यों पहला नंबर लेती है, मैं क्यों नहीं लेती हूँ। क्योंकि मम्मा हर समय यही समझती है कि बाबा ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव बाबा जब भी बोलते हैं, वो पार्टी से बोल रहा हो या किसी व्यक्ति से बोल रहा हो, तो वो ये नहीं समझती फलाने से, वो समझती कि मेरे से बोल रहे हैं। इतना उनको परमात्मा के महावाक्यों का महत्व है कि हर शब्द मेरे लिए बोल रहा है संगम युग पे। तो इसीलिए वो पहला नंबर ले लेती, आप नहीं लेती बोले। तो फिर मैंने अपने आप को फिर उसके बाद चेंज कर दिया, क्योंकि दादी ने ये बात मुझे 2004 में कही थी। तो हम भी ऐसा करते थे, अव्यक्त बाबा आते था ना, तो फिर हम भी लास्ट में उठ जाते थे कि नहीं अभी तो बाबा फलाने विंग वालों से मिलने वाला है, विदेशियों से मिलने वाला है, तो चलो तब तक खीर पूरी हो जाएंगी, नहीं तो खा लो। तो फिर उसके बाद में कभी भी बाबा जाने तक उठता नहीं था। वो जब सुना मैंने कि नहीं भाई जो भी बाबा बोल रहा है मेरे लिए बोल रहा है, तो जब तक बाबा नहीं जाता था अव्यक्त बाबा, मैं उठता नहीं था। फिर ये मम्मा का देखो कितना मुरली से बाबा के शब्दों से प्यार था। तो कितनी छोटी बात है लेकिन उसमें कितना रहस्य समाया हुआ है। तो ओम शांति। थैंक यू दीदी। किस किस को नंबर 1 लेना है? हर एक को। तो क्या करना है बाबा के हर महावाक्य को चलो आगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा, सबको मज़ा आया। आई थिंक हर मधुबन निवासियों के पास तो भर भर के खजाना होगा, तो घंटों बैठे रहे तो भी कम नहीं है, राइट। थैंक यू।